A very good evening to everyone who's tuned in and everyone who's watching today, tomorrow, जब भी देखते हो. So the topic that we're going to discuss today is something जो कि तुम सबके इंटरेस्ट की है. रीज़न मैं क्यों बोल रहा हूँ ये is because we're going to discuss मोटर व्हीकल एक्ट एंड कार इंश्योरेंस के रिगार्डिंग में चीज़ है. इंटरेस्ट की क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास 4 व्हीलर होगा, 2 व्हीलर होगा. अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे मॉम डैड के पास होगा. आई थिंक एवरी वन इन दिस स्टेक होल्डर कम्युनिटी जो अभी ये वीडियो देख रहा है उनके पास ये रिलेटेड गाड़ियाँ या फिर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एम्बिट में आप आते ही हो. So mostly law students study this in our first or second year. I studied it in my first year along with the Contracts Act, and you go on to study it simultaneously either in the first or second year. Depends upon your law school. So let's just start with what happens when you give your car to someone else and they ram it या फिर तब accident होता है. Right. So let's just start with what happens when you when someone else rams your car and you give it to someone else. Let's say my dad basically is the one in whose name the car is registered in, insurance उनके नाम पे, and I basically go and drive the car. मैंने accident कर दिया at the end of the day. ठीक है. And just to let you know, I am not a minor. I am above the age of 18. So जो एक्ट होता है वो मेरे गार्डियन है नहीं तो उनके ऊपर वो आने नहीं वाला. But under the ambit of Motor Vehicles Act, if I go on to even ram the vehicle of my dad, he will be the one who will be punishable under this. Why? Because when I say punish, the thing is the car is registered under his name. The insurance is under his name. So at the end of the day, the Motor Vehicle Act has a strict liability which says that if you give your car to someone else and they go on to ram it or have accident with it, you're going to be the one who will be compensating. So make sure when you drive or you give your car to someone else, you know what he's capable of. उसको कितना चलाना आता है, कितना चलाना नहीं आता है. एंड कभी कभी तो उसके ऊपर भी नहीं होता. मोस्ट लाइकली एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द अदर्स एज वेल, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ यू डिड समथिंग रॉन्ग. सो कवरिंग दिस, अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू गिव योर कार टू समवन एल्स, even then you will be held responsible if they go on to ram your vehicle या accident होता है. So yeah. Another example, if you feel like ये तो चलो mom dad या पापा मम्मी वाला example दे दिया मैंने. Another example is, let's just say I go on to basically take my friend's car and I go on to then have an accident. तो भी उनका नाम आएगा because strict liability तब भी लगेगी. So anyways, जिसके नाम पे, बहुत बेसिक शॉर्ट रूल, जिसके नाम पे गाड़ी है वो पनिश होगा एंड कंपनसेशन उनका होगा. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैसे तो ज़्यादातर ये होता है कि तुम्हें सिविल लॉज लग जाते हैं एंड ये जो होता है वो उसमें कंपनसेशन के बारे में ज़्यादा होता है. एंड क्रिमिनल एक्शन तब होता है व्हेन इट्स वेरी वेरी ग्रेव. ठीक है. सो यूजुअली विल बी रिगार्डिंग सिविल लॉ. नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट दैट वी शुड डिस्कस इज कि व्हाट हैपन्स अगर मैंने किसी को दे दी गाड़ी, इट्स नॉट विथ यूज या यूज हो नहीं रही है, तो क्या होगा अब. Right. So now, what if my car isn't being used by me? मैं यूज़ कर नहीं रहा and I thought let's just sell it. So I decided कि मैं इसको किसी को दे देता हूँ. इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है. ठीक है. मैंने किसी को दे दिया because I'm not using it. हो गया 12-13 साल हो गए, मैंने दे दिया किसी को. ठीक है. That guy, you thought that you giving it under scrap. ये अच्छा मैं ये रीज़न दे रहा हूँ क्योंकि my dad did this. He basically gave his car under this thing कि you going to scrap this vehicle. But that guy didn't go on to scrap the vehicle. He used it. Now if he gets to use that vehicle and उसके साथ वो यूज़ करता है, पुलिस चलान वलान लगाता है. चलान भी छोड़िए आप, अगर गाड़ी को पकड़ता है, इंश्योरेंस है नहीं, who is going to be liable? A simple question. Again, the person in whose name the गाड़ी is registered, the car is registered, the insurance जिसका expire हो चुका था, that will be my dad. So make sure when you're giving your vehicle to someone, you know that उनसे लिखवा के आपने ले लिया है कि आप इसको scrap purposes के लिए ही यूज़ करने वाले हो. You're not going to use it कि मैंने आपको दे दिया and then you make it fit and then वापस आपने चलाने लगे. ठीक है. So you make sure that it goes on to go into scrap and वो उसका और कुछ यूज़ ना हो. Because इवन इफ वो स्क्रैप में दे देते हो और आप और कोई और यूज़ करता है तो फिर भी ये होगा कि वो आप यूज़ हो सकता है, तो आपके ऊपर नाम आएगा. एंड द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ बेसिकली यू गो ऑन टू टेल देम कि आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, जो आरटीओ में जाके या फिर आपको अपने जो गाड़ी के जितने पेपर्स हैं वो अपने ऊपर नाम पे आप ट्रांसफ़र कर लो. मोस्टली पीपल एस्केप दैट, उनको करने का मन नहीं करता क्योंकि ये है कि जितने का आप वो ट्रांसफर में डॉक्यूमेंट में पैसे वैसे दोगे उतने की तो आपकी सेकेंड हैंड गाड़ी भी नहीं होती जितने में वो ले रहे होते हैं. मतलब ऑब्वियसली हाँ गाड़ी उससे महंगी होगी बट
the whole thing that will take you the amount of efforts, the amount of time plus money काफ़ी लगता है ट्रांसफ़र वाले आरटीओ डॉक्यूमेंट में, तो वो एस्केप करना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर इट इन देयर नेम, ठीक है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट हैपन्स कि तुम कल को जाके अगर कोई और सेकेंड हैंड ओनर भी अगर नाम अपना ट्रांसफ़र नहीं करवाता है एंड नाम आपका अगर एसोसिएट रहेगा जो फर्स्ट ओनर है, तब भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि स्क्रैप में दे दो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, एंड मेक श्योर दैट इट एक्चुअली गोज इनटू स्क्रैप। अगर सेकंड ओनर को देने जा रहे हो या सेकंड हैंड दे रहे हो किसी को, तो फिर मेक श्योर इट गोज इनटू द राइट हैंड्स हु मेक श्योर कि वो उनके नाम पे चले जाए, ठीक है। एंड इंश्योरेंस वो ले ले, या फिर दे मेक श्योर कि इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र करवा ले, तो ऐसी थिंग्स उनको करवानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग दैट वी गोना टॉक अबाउट इज द रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑन 21st of July came up with what happens about third party insurance if a rental transport agency is driving a car or the vehicle. Now on 21st of July the Supreme Court held that if you give your vehicle टू दी फॉर रेंटल पर्पस और टू दी ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर आप किसी को देते हो एंड वो गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ उनका जो इंश्योरेंस होता है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दैट यू हैड फॉर योर व्हीकल गेट्स ट्रांसफर टू दी ट्रैवल एजेंसी जिनको आपने अपनी गाड़ी दी है या फिर रेंटल पे अपनी जो आपने गाड़ी दी है। नाउ दिस वॉज रिगार्डिंग द यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेज नेशनल इंश्योरेंस का केस था, एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का केस था। एंड दिस वेंट ऑन फॉर सेइंग कि अगर द इंश्योरेंस कंपनी हैड सेड कि हम लायबल नहीं होंगे क्योंकि ये ओनर चला नहीं रहा था, ठीक है, जिनके नाम पे है इंश्योरेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसीलिए बोला कि अगर रेंटल पे भी दी हुई है गाड़ी तो भी आप कवर करेंगे उनको। सो इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट बैक आउट ऑफ इट बोल के कि नहीं मतलब हम कवर नहीं कर रहे बिकॉज द ओनर वॉजंट ड्राइविंग। तो दिस मेक्स श्योर अभी अब तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा वो ओला उबर और वो सब वाले केसेस में भी। सो आई फील लाइक दिस विल गो ऑन टू कवर इवन दैट फैक्टर बिकॉज आप अपनी गाड़ी जब आप उनको दे रहे हो तो वो रेंटल पर्पज पे ही दे रहे हो, यू गिविंग इट, उससे मॉनिटरी पर्पज आपको मिल रहा है, कट मिल रहा है आपको क्योंकि आपकी गाड़ी होती है। एंड आई थिंक इट विल गो ऑन टू कवर दैट एज वेल बिकॉज वॉट हैपन्स इज कि आप रेंटल पर्पज पे दे रहे हो और आपका जो इंश्योरेंस जो ओनर आप होते हुए तहत आपके नाम पे होगा वो भी ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये ही था आज का जो टॉपिक्स मेरे को कवर करने थे। उसके अलावा अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो कोई आपको ब्रीफ में समझना है तो आप मुझे बताइए। और दैट्स ऑल फॉर माय एंड, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।